بہت ساری جو دوسرے ناشران ہیں ان کے زیر اہتمام کتاب میلہ ایک طرح سے لگایا گیا ہے اور بڑے بڑے شاعروں کی ادیبوں کی یہاں پر تصنیفات رکھی گئی ہیں تاکہ ایک عوامی شعور پیدا کیا جائے اس بارے میں کتاب سے ہم لوگوں کی دوری، اس معاشرے کی دوری، نوجوان نسل کی دوری، اور اس دوری کو دور کرنے کے لیے یہاں پر کتاب میلہ کے تعاون سے اور بہت ساری بک فاؤنڈیشنز کے تعاون سے یہاں پر جو کتابوں کا اسٹالز لگائے گئے ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ہی پرتحسین اور اچھا قدم ہے، یہ آگاہی دینے کے لیے لوگوں کو کہ کتاب کی طرف آئیں، کتاب سے جڑیں، کیونکہ کتاب بہترین دوست ہے۔ تو یقیناً مجھے یہاں آ کر بہت اچھا لگا، اور میں یہاں ڈاکٹر انعام الحق جاوید صاحب کی کتاب نواں بشکا کے حوالے سے یہاں پر آئی تھی، ان کا ایک ریویو لینے کے لیے اپنے چینلز کے لیے، اور مجھے بہت اچھا لگا یہاں پر دیکھ کر کہ جس طرح سے لوگ اس میں انٹرسٹ شو کر رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی یہ ایک بہت ہی خوش آئند بات ہے۔ تو تھینک یو سو ویری مچ جن لوگوں نے بھی اس کا انعقاد کیا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس کا ایک پازیٹیو معاشرے پر امپیکٹ ہوگا۔ تھینک یو۔ جی، تو ڈاکٹر انعام الحق جاوید صاحب کی شخصیت اور ان کی نئی کتاب نواں بشکا کے حوالے سے یہاں پر بہت بڑے بڑے ادیب اور رائٹرز موجود ہیں اس وقت، اور میں بڑی ایکسائٹیڈ ہو گئی ہوں نعیم فاطمہ علوی کو یہاں پر دیکھ کر، اور میں جاننا چاہ رہی ہوں ان سے کہ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت اور ان کی اس نئی کتاب جو آ رہی ہے مارکیٹ میں، اس کے بارے میں یہ اپنا کیا تاثر رکھتی ہیں۔ جی، کیسی ہیں آپ؟ جی بالکل، اللہ کا شکر ہے، بالکل زبردست۔ تو پہلے تو بتائیے ڈاکٹر انعام الحق جاوید صاحب کی ماشاءاللہ شخصیت۔ جی بالکل، جب سے ہم نے شعوری ہوش سنبھالا ہے، شاعری کو سمجھنا شروع کیا ہے، تو ہم ڈاکٹر انعام الحق کی شاعری جو ہے وہ پڑھتے بھی رہے ہیں، سنتے بھی رہے ہیں، لیکن ہم انہیں ایک مزاح نگار کے حوالے سے سچی جو بات ہے، بالکل ان کی وجہ شہرت ان کی مزاحیہ شاعری، اور مزاحیہ شاعری میں بھی انہوں نے سماج پہ جس طرح طنز کیے ہیں اور جس طرح ان کو بہت ہی ہلکے پھلکے انداز میں اور بڑی گہری چوٹ کی، معاشرے کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے، تو وہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ اب یہ جو آپ اس کتاب کے حوالے سے بات کر رہی ہیں، تو وہ کل سے میں بھی یہ بک فاؤنڈیشن کے سٹال پہ بیٹھی ہوں، اور لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ یہ بشکا کا ایک تو اس کا نام ہی بشکا، وہ تو ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے، انہوں نے بھی سیکرٹ رکھا ہوا ہے۔ جی، لیکن یہ ہے کہ یہ آج پھر میری ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھ ہی لیا، میں نے کہا اس کا مطلب کیا ہے، کل سے مجھ سے لوگ پوچھ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ پرانے زمانے کی روایت ہے ہمارے بچپن کی، کہ وہاں ایک سٹک لے کے اس کے پیچھے ایک گٹھری سی باندھی بھی ہوتی جو کندھے پہ رکھی بھی ہوتی تھی۔ تو وہ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ وہ خود ہی وہ شعر کہتے تھے، خود ہی وہ چھاپتے تھے، لکھتے تھے، اور پھر اس کو لے کے خود بیچتے بھی تھے۔ تو یہ مارکیٹنگ بھی تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ جو گٹھڑی ہے وہ اتنی برکت والی تھی کہ وہ اس میں ان کا کھانا بھی ہوتا تھا، بسا کھانا بھی، انٹرسٹنگ، ویری انٹرسٹنگ۔ تو وہ مجھے بہت ہی مزہ آیا اس کو سن کے کہ آپ یہ دیکھیں کہ پرانی روایت نہیں، اور اس کتاب کے بارے میں جو بالکل، اور ایک نئی چیز جو مجھے ہے کہ ان کی سنجیدہ شاعری، مطلب ہم بڑے پراشتیاق ہیں یہ جاننے کے لیے کہ مزاحیہ شاعری، تو ان کی ابھی ہم نے کتاب پہ ریویو بھی دیا، ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے ان کی اس کتاب سے کچھ نظمیں سنی ہیں، جی بہت کمال کی ہیں، بڑی گہری اس پہ نظر ہے ان کی، سماج پہ بھی، مسائل پہ بھی، اور ہماری جو بھی معاشرتی زندگی ہے اس پر ایک دو نظمیں انہوں نے سنائی تھی، اور مجھے پڑھنے کا اشتیاق ہو گیا، میں انشاءاللہ کیونکہ ابھی انہوں نے تھوڑا سا پردہ داری، تھوڑا سا راز رکھا ہوا ہے، کیونکہ ابھی یہ کتاب آپ لوگوں نے خود بھی پڑھنی ہے، اور میں بہت کتاب ہوگی یقیناً، بالکل یقیناً، اور میں بہت شکر گزار نعیم فاطمہ علوی آپ کی، اور سارے یہاں پہ بہت بڑے بڑے رائٹرز موجود ہیں، اور میں ایکسائٹیڈ ہوں کہ میں ان سب کی رائے ڈاکٹر صاحب اور ان کی کتاب کے بارے میں آپ تک پہنچاؤں۔ جی، تو یہاں اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں شہریار صاحب، جو کہ پی ٹی وی پر خبریں بھی پڑھتے ہیں، ریڈیو پر بھی بہت سارے پروگرامز کے تجزیے کرتے ہیں، اور ایک اس حوالے سے ان کا ایک بہت معتبر نام ہے، اور یہاں پر میں ان سے ڈاکٹر انعام الحق جاوید صاحب کی شخصیت اور ان کی جو نئی کتاب ہے نواں بشکا، اس کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہوں گی۔ جی سر، یہ بتائیے گا کہ یہ کتاب میلہ تو یقیناً خوش آئند بات ہے، آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کہ کیا یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر انعام کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ جی، میلوں کی روایت تو بہت اچھی شروع ہو گئی، جی میں اس سے بہت سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں بہتری ہوگی، کیونکہ آج کل کا جیسا دور ہے، سوشل میڈیا، ٹک ٹاک، یہ جو فضولیات میں وقت ضائع کرتی ہے نوجوان نسل، انہیں یہاں لانا چاہیے، تاکہ آج مجھے یہ دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی کہ کچھ بچے اور بچیاں جو اسکولوں کی طرف سے آئے تھے، انہوں نے خاص ناولز وغیرہ کے
के बारे में पूछा, इंक्वायरी की और उन्होंने लिया। मतलब हमारी नौजवान नस्ल से हमें बड़ी अच्छी उम्मीद रखनी उम्मीदें चाहिए। हैं, बिल्कुल। और इन्हें ऐसा भी करना चाहिए कि कॉलेजेस से, स्कूलों से ये भी इनको लाजमी कर दें कि जब भी एग्जीबिशन हो वो अपनी बसें भर के भेजें। बिल्कुल, और ताउन करना चाहिए, ताउन करना चाहिए। और उन्हें ये हिदायत करनी चाहिए बच्चों को कि आप हर महीने में ना सही तो 6 महीने में कम से कम एक नावल, एक किताब पढ़ के दिखाएं कितनी अच्छी बात आपने, कितनी अच्छी तजवीज दी है। यकीनन इससे लोगों में एक इश्तियाक इसका पैदा होगा पढ़ने का। और जब तक आप पढ़ेंगे नहीं आपको समझ ही नहीं आएगी दुनिया क्या है। ये जो टेक्स्ट बुक हमें पढ़ा रहे होते हैं ये तो सर रट्टे मट्टे हैं, उसमें कुछ भी नहीं मैडम। आप जो जब कहा जाता है ना कि आप अदब पढ़ो, लिटरेचर पढ़ो, तो उससे मुराद यही होती है कि ये जो बड़े बड़े दानिशवर हैं, जो बड़े राइटर्स हैं, जो अदीब हैं, उनको पढ़ा जाए। इतना इल्म है दुनिया में। और क्या उनके जिंदगी भर के तजर्बात उसमें शामिल हैं, उनके मुशाहिदात उसमें शामिल हैं। तो ये डॉक्टर इनामुल हक जावेद साहब के बारे में आप क्या जानते हैं? डॉक्टर इनामुल हक साहब के बारे में अगर मैं बात करूँगा तो उसमें बहुत ज़्यादा मेरी ज़ाती प्यार और मोहब्बत आ जाएगी उनके बारे में। शफीक इंसान है, इतने अच्छे इंसान हैं। ऐसा ही है। मैं उनको 96-97 से जानता हूँ, जब मैंने PTV पे खबरें पढ़नी शुरू की थी जी। अच्छा। उस वक्त से ये शायरी के प्रोग्रामों पे आया करते थे PTV में। उस वक्त से इतने शफीक और इतने ज़बरदस्त है। और माशाल्लाह इन्होंने अपने आप को इतना मेंटेन रखा हुआ है कि मैं बूढ़ा हो गया और ये अभी तक जवान है। मुझे अभी भी वैसे ही नजर आते हैं। वो जो खुशी, एक जो लोगों को माशरे में कुछ देने का एहसास, वो इनको तवाना रखता है। और मैं समझती हूँ कि जब आप ये सदका जारिया पे आ जाते हैं ना, जो आपने हासिल किया है वो आप लोगों में बांट रहे हैं, ये बड़ी बात है। बहुत और बात तो उनकी जो नवा बुश्का, ये क्या है नाम ही अव्वल तो हमारी समझ में नहीं आ रहा। नहीं, ये बुश्का इसीलिए इसमें 2 चीजें पता लगेंगी जी। जिसको आप एक नया नाम जब देते हैं ना तो उसमें हर एक इंसान को दिलचस्पी पैदा होती है कि ये क्या मतलब है। वो उसको पूछता है। एक तो इससे पब्लिसिटी होती है। मैंने भी आगे पिक्चर तो मैंने देख ली थी बुक के ऊपर, मैं समझ गया था, लेकिन मैंने फिर भी पूछा कि बुश्का क्या चीज है। मतलब ये बड़ा एक तजस्सुस उन्होंने रखा है कि लोग उनसे आके पूछें। इससे डबल मीनिंग निकलती है ना। एक तो आप उसको पूछते हैं जो चीज समझ में नहीं आती। दूसरा, इसमें जो शायरी है ना, संजीदा शायरी के बारे में कहा, डॉक्टर साहब ने बड़ी ज़बरदस्त शायरी की है जी। ऐसे दौर में मज़ाहिया शायरी डॉक्टर साहब ने की है जब शाहिद सरफराज साहब, ज़मीर जाफरी साहब, अनवर मसूद साहब, ज़मीर जाफरी और पता नहीं कौन ऐसे शौरा में अपना मकाम मेंटेन किया है। मकाम मेंटेन किया है इनामुल हक जावेद साहब ने। और दूसरी बात ये सिर्फ शायरी नहीं है। एक तो सिर्फ शायर होते हैं ना, कॉलम नवीस होते हैं, अदीब होते हैं। डॉक्टर साहब बड़े अदबी आदमी और प्रमोट करने वाले हैं। बड़े बड़े आला ओहदों पर रहे हैं, बिल्कुल पॉलिसी मेकर्स में रहे हैं, ऐसा ही है। नेशनल बुक फाउंडेशन के रहे हैं। जी बिल्कुल, मैंने इनका A2 पे जो इंटरव्यू किया था उसमें मैं तो खुद ही थोड़ा सा वो शेकी थी। अच्छा ये बताइएगा कि आप ज़ाती तौर पे क्या समझते हैं कि डॉक्टर साहब मज़ाहिया शायरी ज़्यादा अच्छी करते हैं या संजीदा शायरी? देखिए, अभी तो मुझे मज़ाहिया शायरी अच्छी लगती है, जवानी में संजीदा शायरी अच्छी लगती थी। अभी क्योंकि एक स्टेज होती है जी, उसकी एक ऑडियंस होती है जी। नौजवान जो है ना, नौजवान जब अपना होश संभालता है ना, जब जवान होता है तो फिर उसको संजीदा और इसकी शायरी अच्छी लग रही होती है। बिल्कुल। लेकिन जब आप वो सही से निकल जाते हैं तो फिर अब हमें मज़ाहिया शायरी को ज़्यादा इंजॉय करते हैं और हंस लेते हैं। सही। तो ये आजकल के दौर में इतनी डिप्रेशन, परेशानियाँ, फ्रस्ट्रेशन के दौर में मैं समझता हूँ मज़ाहिया शायरी को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए ताकि लोग थोड़ी देर खिलखिला लें। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन डॉक्टर इनामुल हक जावेद साहब की शख्सियत मज़ाहिया और संजीदा दोनों शायरियों में मुसल्लमा है। बहुत शुक्रिया शहरयार साहब आपका, आपने हमें वक्त दिया। और अभी हम आपको और लोगों से भी मिलवाते हैं, ठीक है जी। तो व्यूअर्स, हम इस जहाँ पर मौजूद हैं किताब मेला में, और बहुत ही मेरे लिए एक दिलचस्पी का सबब ये बात है कि किताबें हैं और किताबों के साथ जुड़ी हुई है हमारी नौजवान नस्ल। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चे जिस तरह यहाँ पे सारे स्कूल और कॉलेज के बच्चे आकर इन किताबों में दिलचस्पी जाहिर कर रहे हैं, ये मेरे लिए एक बहुत ही खुश आइंद बात है। और उससे भी ज़्यादा खुश आइंद बात ये कि मैं इस डॉक्टर इनामुल हक जावेद साहब के साथ मौजूद हूँ। कैसे हैं सर आप? बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मोहब्बत आपकी, आप तशरीफ़ लाए और ये गुफ्तगू हमने शुरू करनी है। बिल्कुल करनी है, क्योंकि हम बहुत पुर इश्तियाक हैं इस वक्त जहाँ पर डॉक्टर साहब की नई किताब को लेकर, नवा बुश्का, संजीदा पंजाबी शायरी। जबकि डॉक्टर इनामुल हक जावेद साहब की वजह शोहरत मज़ाहिया शायरी रही, तो आखिर ये संजीदा शायरी कहाँ से एकदम से उसकी तसनीफ़ था सर? इसके बारे में सबसे पहले बताइए। देखिए, असल में मैं उर्दू और पंजाबी
جی दोनों ज़ुबानों में दोनों तरह की शायरी करता हूँ, जी यानी मज़ाहिया भी संजीदा भी। जी चुनांचे कुछ मज़ाह का पलड़ा भारी है, जी बिल्कुल ज़्यादा लिखा है मज़ाह में, जैसे आपने भी कहा, और इसमें मैं ज़मीर जाफरी साहब का कौल दोहरा दूँ, पीरो मुर्शिद का। जी वो कहा करते थे कि हमने तो, वो भी संजीदा शायर थे जी और उनका भी जो कुलियात छपा था जी पहली दफ़ा संजीदा शायरी का, जी तो उसके नीचे लिखना पड़ा उन्हें कि संजीदा शायरी। संजीदा शायरी तो वो सही। कहा करते थे कि मैंने थोड़ी सी मज़ाहिया शायरी की थी, बाकी तो लोगों ने करवाई है। बाकी लोग तो कुछ मेरा भी यही हिसाब है कि 2-4 चीज़ें कुछ लिखी, वो ऐसी पसंद आई कि फिर ये लगा कि यही आखिर को ठहरा फ़न हमारा। तो लेकिन वो जो है यानी संजीदा शायरी से नाता टूटा नहीं, बिल्कुल वो कायम रहा। तो मेरा ये तो संजीदा शायरी का मजमुआ नवा बुश्का आया, इससे पहले एक किताब आई थी, उससे पहले भी एक किताब आई थी। अब मज़ाहिया शायरी का जो है नवा मौज मेला पंजाबी का, वो भी नवा छप रहा। मौज मेला, नवा मौज मेला, क्या बात है। मौज मेले तो बहुत है, लेकिन अच्छा, जरा हर नवा चीज़ होना कुछ चाहिए। नई नई सी है डॉक्टर साहब की जिंदगी में। इसके बारे में हम ऑफ कैमरा जानेंगे कि वो नया क्या है आखिर जो इन्हें नई नई चीजें करने पर मजबूर कर रहा वो हर दौर जो है ना अपने साथ कुछ मुहावरे, कुछ सिमलीज, कुछ और चीज़ें मैं बयान नहीं करना चाहता, यहाँ लेकर आता है। जी जी माहौल लेकर आता है, चेंजेस लेकर आता है। जी तो जब वो आप 5-7 साल के बाद आपका कोई मजमुआ आ रहा होता है, जी तो पहले मेटाफर, पहले चीज़ें, पहले मुहावरे, ज़रबुल अमसाल जो मुस्तअमल होती हैं, जी जी वो पीछे हट जाती हैं जी और दूसरी सामने आ जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जनाब सबसे पहले तो बताइएगा कि नवा बुश्का का आखिर मतलब क्या है। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ इस पे, मुझे तो नहीं समझ आ रहा, तो जनाब बताइएगा ज़रा। ये किताब पकड़ा ना यार, ये मुझे मिलेगी ना नहीं, डॉक्टर आपको आपकी ही है ये, इसीलिए मैंने जी। अपने कब्जे में कर ली है। जी। ये खुर्रम साहब दें या ना दें, मैं दूंगा। जी। अच्छा, ये देखिए, इसके ऊपर एक तस्वीर बनी हुई है, जी ये एक बांस या डांग है, जी और इसके साथ ये एक चीज़ बनी हुई है, गठड़ी सी कुछ। गठड़ी सी है। जी। पुराने ज़माने में जो है फ़कीर, जी फ़कीरों का बुश्का होता था जी। या बुचका होता था, अच्छा। दोनों लफ्ज़ मुस्तामल हैं। सही। तो वो ये था कि वो ये एक लंबा सा मोटा डंडा और जी। उसको लेकर उसके साथ इतने हिस्से में एक चादर बांध देते थे। जी चादर इसलिए बांधते थे, थैला नहीं, चादर होती थी, ताकि उसमें चारों तरफ से हाथ आप डाल सकते। सही तो ये कंधे पर डाल लेते थे इधर, जैसे ये नीचे मैं खड़ा हो जाऊँ इसके, सही। और फिर ये पीछे होता था और ये बाजू इसके ऊपर डंडे पे रख देते थे। अच्छा। अब ये बिल्कुल एक हाथ से जो चीज़, जो फ़कीरों को जो भी मिलता था इसमें इधर से डालते जाते वो थे। कहते थे ना फ़कीर का मालो मता इसमें है, सारा। इसमें है, सही। डालते जाते सही। थे और ये हाथ उनका फ्री होता था। अच्छा। और फिर अगर कोई कुत्ता वुत्ता उनको पड़ जाए तो इसी में से यही निकाल कर उसको भगा भी देते सही, थे। सही। आपको पता है कि जो भी ज़रा जिसको ज़रा शोहरत मिलती है जी। तो कुत्ते भी उसको पड़ जाते हैं। ये तो बहुत ही ठीक है। जुमानी हो गया और हम बिल्कुल इसकी तफसील में नहीं जाएंगे। अच्छा, हम यहाँ ये- कुत्तों से कुत्ते ही मुराद लेंगे। अच्छा, नहीं, ये फ़कीरों की बात कर रहे हैं। से मुराद कुत्ते ही हैं। अच्छा, ये तो वो उन वैसे ही बरसबीले तस्करा आ गया, लेकिन असल में जो बुश्का है जिसके लिए मैंने नाम लिखा है, जी ये हमारे ज़माने में जब हम छोटे थे तो हम देखते थे, ये उस वक्त शायर खुद साख्ता शायर देहातों में, ये पंजाबी की किताब, पंजाबी के खुद साख्ता शायर होते थे, उन्हें कोई पता नहीं था वज़न क्या होता है। वो उन्होंने मिर्ज़ा साहिबा पढ़ी, हीर रांझा पढ़ी, और उनके अंदर शायर बैठा होता था, वो करने लग पड़ता था। उनमें बड़े शायर भी बनते थे लेकिन आम भी बहुत होते। सही। वो फिर ना शायर और कोई काम तो शायर बेचारे कर नहीं सकते थे। वो तो वैसे भी नहीं कर सकते। हाँ, जनाब। वैसे भी नहीं करते, लेकिन चलें अब तो करते हैं। तो वो ये करते थे कि किस्सा अदब पंजाबी की एक देखिए, पंजाबी में एक दास्तानें हैं, जी बिल्कुल। जैसे ये हीर रांझा और मसनवी की सूरत जी में। बिल्कुल। और उसके बाद बहुत सी चीज़ें हैं, बोलियां हैं, टप्पे हैं, असनाफ हैं। एक उसमें किस्सा अदब है। जी किस्सा अदब यूँ समझें कि जैसे मेरी बकरा मंडी है, या अनवर मसूद की चाहते लस्सी है, जी। या सास्ते नौ है, जी ठीक है। ये किस्से थे पुराने ज़माने में, लेकिन वो जी। शायर अपने हिसाब से लिखते थे। बिल्कुल। वो खुद ही लिखते थे, 8-10 सफ़े का फैशन पे लिखते थे, चाय पे लिखते थे, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, मतलब नीम मज़ाहिया, नीम दानिश, और इस तरह जी। से 8-10 सफ़े का, 12 सफ़े का वो
रद्दी कागज़ पे छप जाता था, हल्का सा उसके ऊपर टाइटल होता था और वो खुद ही लिखते थे, खुद ही छपवाते थे और खुद ही बेचते थे। अच्छा। वो उन्होंने ये बुश्का जो है लिया होता था, गांव से आते थे और फिर फैसलाबाद में, झंग बाज़ार में, दूसरे में वो अपना किस्सा ही साथ में पकड़ा होता था, वो पढ़ते जाते थे और लोग इर्द गिर्द सुन रहे हैं, रुक भी जाते थे किसी जगह, ज़्यादा लोग हुए, कई लोग सुनने के लिए रुक जाते तो वो भी रुक जाते, वरना चलते हुए बाआवाज़ बुलंद पढ़ते थे और जिसको पसंद आता तो मतलब मैं गुजर रहा था तो मैंने एक शेर उसका सुना, जो ही सुना तो मैंने उसको दवन्नी निकाल के दी और किस्सा ले लिया। तो वो आसान काम। जनाब अपनी किताब के हवाले से ये नाम आप इसको कैसे रिलेट कैसे करेंगे? ये इस किताब के लिए मतलब आप क्या देना चाह रहे हैं लोगों को? क्या जो कुछ मेरे पास है, जो कुछ है, बहुत ही खूबसूरत बात है असल में, जो कुछ है, जो इल्म, जो दानिश आपके पास है, जो वो आप अब सदका जारिया कह लें या जो भी इसको आप नाम वो दें। तो ज़ाहिर है हर शायर की ख्वाहिश होती है कि जो उसने लिखा है वो लोगों के लिए लिखा है, अपने लिए तो नहीं लिखा जी। कि जो कुछ भी उसका तजर्बात हैं वो उसमें पेश। तो डॉक्टर साहब आप माशाल्लाह 75 से ज़ायद तसनीफ़ात के अब तो मालिक हैं, तो अपनी इस तख्लीक को आप दूसरी किताबों से कैसे मुमताज़ करेंगे? या ये भी बस एक आम पुरानी किताब है या इसमें कोई ख़ास बात है आपकी नज़र में? नहीं, ख़ास बात तो मेरी हर किताब में है, बेशक है। और हर शायर या हर अदीब ही ये कहता है कि वरना वो छपवाए ही ना, जी जी कहता है। तो मेरी अपनी नज़र में, अपनी तो मैं तारीफ़ नहीं करना चाहता, जो पढ़ेंगे वो इसके सही नाक़िद हैं कि कोई चीज़ अच्छी है, कमज़ोर है, दरमियानी है, क्या है, नई है, पुरानी है, ये तो उनका काम है। लेकिन ये ज़रूर है कि अपनी तरफ से जितनी कोशिश हो सकती थी, जो कुछ भी मैं, जितना शायर हूँ मैं, जी बिल्कुल, आप माशाल्लाह जितने कदावर लिखारी और शायर हमारे डॉक्टर इनामुल हक जावेद साहब हैं, ये सब कसरे नफसी से काम ले रहे हैं, लेकिन जो इनका मुताला करते हैं इनकी तख्लीक़ात का, वो इनके बारे में बखूबी जानते हैं, इनके इल्मी और अदबी कद के मुतालिक जानते हैं। और इस वक्त हम अभी आपसे आपका इस नई किताब में से थोड़ा सा कलाम भी सुनेंगे, और आपके साथ मैं देख रही हूँ कि बड़े बड़े मेहमानान मौजूद हैं। तो जनाब आप मैं चाहती हूँ कि आप अपना तारुफ खुद कराएं और बताइए कि आपका क्या तासुर है। इनका तारुफ मैं करा देता हूँ, ये जावेद शहजाद साहब। मैं खुद करा देता हूँ, डॉक्टर साहब ज़्यादा बड़ा तारुफ करा देंगे, मैं इतना बड़ा हूँ नहीं ना। तो मैं जावेद शहजाद हूँ, ABN टेलीविज़न चैनल है, उनका हेड ऑफ रिपोर्टिंग टीम हूँ, और साफ ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर है, उसका मैं चीफ रिपोर्टर हूँ। और डॉक्टर साहब के साथ मेरा बड़ा कल भी लगा हुआ है कि एक डॉक्टर नहीं, इनके साथ दूसरे डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं, डॉक्टर फारूक आदिल भी बैठे हुए हैं। तो वो मतलब हमारा इनके साथ याराना है और हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती है। तो ये जहाँ जब भी कोई इस तरह का इक़दाम करते हैं, जब भी कोई नई नज़म लिखते हैं, नई गज़ल लिखते हैं, नई किताब लिखते हैं, तो उसमें हमें ये मदऊ भी करते हैं, डिस्कस भी होता रहता है इनसे, और हमें भी बड़ी खुशी होती है कि इनके इवेंट में जाएं। और आज आगे हफ्ता था, ऑफ डे था, हम ऑफ डे कुर्बान कर दिया डॉक्टर साहब के ऊपर। और डॉक्टर साहब के बारे में तो अक्सर मैं कहा करता हूँ ना, देखे उससे जो एक नज़र, तो बस देखता रहे, रहता है दिल हमेशा फिर उसी के इंतज़ार में, रहता है दिल हमेशा फिर उसी के इंतज़ार में। वो आगाज़ मोहब्बत भी, अंजाम मोहब्बत भी, सानी नहीं उसका कोई इस बड़े दियार में। नाम है उसका इनामुल हक, खुद जान लो, पहचान लो, आती नहीं है खूबियाँ उसके शुमार में। वाह, बहुत ही खूबसूरत, क्या बात है जनाब। इस कदर आपने भरपूर इनकी शख्सियत के हवाले से एक तज्जिया हमें दिया। इनकी नवा बुश्का के बारे में आपकी क्या राय है? जी, नया बुश्का के बारे में हमें सिर्फ दावत मिली थी कि ये इस किताब लॉन्च हो रही है, आप इसमें तशरीफ़ लाएँ। ये जैसे ही किताब हम तक पहुँचेगी, इसको हम स्टडी करेंगे और उसके बाद फिर डॉक्टर फारूक आदिल से डिस्कस करेंगे इनके सारे जितने अबवाब हैं, और उसके बाद हम अपना जो तज्जिया आपके सामने पेश करेंगे। किताब पढ़ने के बाद तज्जिया बड़ी अहमियत का हामिल होता है, और पढ़े बगैर जो तस्दीक है वो ऐसी है कि जैसे बस आपने खबर पढ़ ली और खबर गायब हो गई। बिल्कुल ऐसा ही है, और बेहतरीन बात आपने कही, आपकी शुक्रगुजार। और जनाब आप ज़रा अपने बारे में अपना तारुफ करें, आप ज़रा अपने बारे में थोड़ा बताइए, और डॉक्टर साहब के बारे में भी किताब। जी, मेरा नाम फारूक आदिल है और मैं डॉक्टर इनामुल हक जावेद का शागिर्द हूँ। अच्छा। दोस्त है हमारे हम इन्हें पढ़ते रहते हैं इनके कॉलम में। ये जो नवा बुश्का है ना, असल में तो ये कल इनका फ़ोन आया तो कहते हैं तो बुश्का आ गया यार, तुम आ जाएं तो हम हाजिर हो गए। अच्छा, बुश्का के जब टाइटल देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे आजकल हम स्मोक के माहौल में है ना, तो ये क्यों हुआ? इसलिए कि हमारी ज़िंदगी बड़ी आर्टिफिशियल हो गई और बड़ी यानी
मसनूई किस्म की ज़िंदगी गुजारने लगे। हमने बाग काट दिए, दरख्त काट दिए और कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए, है ना। नतीजा ये निकला कि हम एक अजाब हम पे मुसल्लत हो गया। और ये जो हमारे जावेद शहजाद साहब हैं, रोज़ सुर्खी लगाते हैं स्मोक का रोग, तो वो रोग लग गया हमें, है ना। हम सब रोगी हो चुके हैं। हाँ। तो दरअसल हमारी जो ज़ाती ज़िंदगी है, इज्तिमाई ज़िंदगी है, ये सारी की सारी बड़ी मसनूई सी हो गई है। ऐसा ही। अब हम, एक ज़माना था हमारे बुज़ुर्ग तो बुशका उठाते थे जी। तो हमारे जो वालिदैन हैं उन्होंने ब्रीफ केस उठाना शुरू किया। फिर पता चला कि ब्रीफ केस उठाना भी शान के ख़िलाफ़ है, तो वो PS उठाता है जी, बिल्कुल। और हम खाली हाथ चलते हैं, है ना। ये सुखाती है खालिया जो बैग उठाएंगे। तो ये है मसनूई ज़िंदगी के आसार। इससे बड़े मसाइल पैदा हो गए हैं, यानी मुनाफ़क़त पैदा हो गई है, झूठ पैदा हो गया है। और ये जितने ये जिसको आप महंगाई कहें, जैसे आप माहौल का मसाइल, सियासी मसाइल की बात करें, जब हम किसी को पुकारते हैं ओए तेनू मैं मुच्छा तो फड़ के लटका देना है, तो ये सब चीज़ें क्यों पैदा हुई? दरअसल हम अपनी असल से निकल गए, तो अदब से भी दूर हैं, तहजीब से भी दूर हैं, असल तो से भी डॉक्टर साहब ने ये बुशका लटका के ना दरअसल हमें बताया है कि हमें किस तरफ जाना है, हमें क्या करना है, हमारी असल क्या है। तो अच्छा, अब ये उर्दू बड़ी यानी ऐसी उर्दू जो हम इनसे सीखें, लेकिन ये फिर भी पंजाबी में शायरी करते हैं, तो सबब क्या है? सबब इसका ये है कि जितनी आप ज़ुबानें सीखें, अपनी कौमी ज़ुबान तो कौमी ज़ुबान है और जान से भी प्यारी है, लेकिन एक ज़ुबान हम माँ के साथ लेके आए हैं, तो उसको याद रखना, उसे पहचानना, उसमें लिटरेचर प्रोड्यूस करना और उसको समझना, ये भी ज़रूरी है। और ये एक तरह का जिहाद है जो डॉक्टर साहब कर रहे हैं ना। तो एक जुमला मैं और कहना चाहूँगा, ये आपने सवाल इनसे किया था कि संजीदा शायरी क्यों, तो बात ये है बीबी कि शायर तो होता ही संजीदा है और उसकी मज़ाहिया शायरी भी संजीदा होती है, और दरअसल वो एक चीख होती है जो अंदाज़े दिगर लगाता है, लेकिन अगर आप उस चीख के अंदर उतर के देखें, उसकी आवाज़ के अंदर उतर के देखें, तो बड़ा दर्द दिल होता है उसमें। अब अगर शायर को अपनी संजीदा शायरी के नीचे ये कैप्शन देना पड़े कि संजीदा शायरी है ये, तो दरअसल ये भी उसका एक प्रोटेस्ट है, उसका एहतजाज है कि यार तुहानू गल समझ ही नहीं आती, बंदे बनो। बहुत ही खूबसूरत बात इन्होंने कही कि संजीदा शायरी के साथ साथ मज़ाहिया शायरी भी एक तरह से एक चीख ही है कि मेरी पुकार सुनो तो सही ज़रा। और मज़ीद भी यहाँ पे मेहमान मौजूद हैं, हम उनसे भी उनका तारुफ और डॉक्टर साहब की शख्सियत और किताब के बारे में एक राय उनकी जानेंगे। सर, मेरा नाम सलीम अख्तर है। डॉक्टर साहब से, डॉक्टर इनामुल हक जावेद साहब से मेरा वही ताल्लुक़ है जो मैं ये समझता हूँ कि बहुत बुनियादी ताल्लुक़, हम इकट्ठे रहे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में भी, उसके बाद भी, और उसके बाद मैंने जो शायरी में, मज़ाह में जो कुछ भी सीखा डॉक्टर इनामुल हक जावेद साहब से सीखा है। उन्होंने मुझे इस तरफ लाया, मैं पहले संजीदा शायरी ही करता था, तो डॉक्टर साहब ने मुझे इस तरफ किया और मैं इनका बहुत ममनून हूँ। और हमेशा इनके साथ मेरा ये ऐसे ही है जैसे कि बड़े भाइयों की तरह मैंने इनको देखा हमेशा, और शफ़क़त से उस्ताद की तरह हर तरह इन्होंने मेरी। तो इस नई किताब के हवाले से और आपकी क्या ये जो तवक्कुआत? किताब जो बुशका आई, इसमें मुझे तो इतना पता है कि डॉक्टर साहब की संजीदा शायरी भी और उर्दू भी, मज़ाह में भी और संजीदगी में भी बहुत अच्छी शायरी है। डॉक्टर साहब एक नब्बाज हैं, नब्ज़ शनास हैं। डॉक्टर साहब की शायरी में जितने हमारे मुआशरे के मामलात होते हैं उनको वो तज़िया करते हैं और उनको पेश करते हैं जैसे वो पूरी तरह इंसाफ के साथ वो पेश करते हैं, और उसको इस तरह ख़्वाह वो मज़ाह में कर दें या संजीदगी में कर दें। बात यही है कि मज़ाह का एक ऐसा लेवल है या मज़ाह का एक तरीक़ेकार है कि बड़े बड़े नासूर लोगों के जो हम मसाइल हैं, जो उनके साथ जो मसला उनके होता है, वो हम मज़ाह में
आसानी तरीके से बयान हो जाता है। संजीदगी में ज़रा थोड़ा संजीदगी सा, लेकिन डॉक्टर साहब हर फन मौला हैं। क्या बात है। वो हिमाजत शख्सियत हैं। ना सिर्फ ये कि उन्होंने मज़ाक और शायरी को प्रमोट किया, लिखी और अपना नाम पैदा किया, उन्होंने शायरी और मज़ाक को इतना प्रमोट किया कि आप जितने भी मज़ाक नगार हैं, लिखने वाले शायर हैं, उनको डॉक्टर साहब ने ढूंढा, तलाश किया और उनको एक किस्म का आगे बढ़ाया और आज वो बड़े बड़े नाम भी हो गए। डॉक्टर साहब का ये बहुत बड़ा कारण है। ना सिर्फ अंदरूनी मुल्क, बैरून मुल्क भी इनका यही है। बिल्कुल ऐसे। और इसके अलावा फिर इकट्ठे इज्तिमा करना, जैसे कि मज़ाक के हवाले से भी और संजीदगी के हवाले से, जैसे बुक फेयर इन्होंने कराने का आगाज़ किया, तो पूरी दुनिया से शायर, अदीब और मुसन्निफ़ीन, आथर और जो भी हमारे सहाफ़ी, जर्नलिस्ट, सबको एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे करके और अपने अपने अजहार का, जिस तरह ये चाहते थे कि अजहार होना चाहिए और कैसे, और फिर वो एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे करके सबको अजहार करने का मौका दिया। और ये एक दफ़ा नहीं, कई दफ़ा मौका दिया और एक बुनियाद डाल दी जो अभी तक ये डरी हुई है, लेकिन अब दोबारा कोई और डाले तो शायद जबरदस्त नाज़िम भी तो रहे हैं ना, तो इन्हें निज़ामत तो ये सारा इन्होंने बड़ा अहम किरदार है। ये जो आज भी ये जो आज भी मेला नज़र आ रहा है, ये उन्हीं की एक कड़ी है या उस पौधा है जो आज आप देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया जनाब। मुझे मोहम्मद इकबाल आमिर कहते हैं और मेरा तारुफ ये है कि डॉक्टर साहब का मैं फ़ैन हूँ और मेरा ये एजाज़ है कि आपकी वजह से हमें किताब से रग़बत मिली है, वरना इस किताब से जो दूरी का सिलसिला है, आजकल के दौर में किताब से लोग दूर होते जा रहे हैं। तो आपका एहसान है कि हमें रग़बत दी है, हमें किताब से जो हमारा ज़ौक़ है अदबी लोगों का, तो हमें ये सिलसिला हमें कायम रखने के लिए डॉक्टर साहब का वजूद हम इस दौर में गनीमत है। और डॉक्टर साहब से और ऐसे जो हमारे अनमोल हीरे हैं, उनसे उनकी रग़बत ही हमारे ज़ौक़ की तर्जमानी है। तो बस यही मैं कहूँगा कि डॉक्टर साहब का तारुफ़ यही है कि मुझे किताब से रग़बत का एक सिलसिला जो है, एक संबल जो है वो हमें मिला है। तो मैं इनका एहसानमंद हूँ कि बुश्का के रूप हमें एक नई किताब दी है और हमारे ज़ौक़ की तर्जमानी की गई है। बहुत बेहतरीन बात। हमारी यकीनन ये खुशकिस्मती है कि हमारे पास इस कदर कदावर खिलाड़ी कह रही हूँ खिलाड़ी मौजूद हैं। नहीं, ये कह सकते हैं जान कर क्या हो इस वक्त। हमारी जुबान ऐसे लड़खड़ाती है नहीं, और लड़खड़ाती आपने बड़ी वारदात तो पूरी शहर है। तो मैं यहाँ पर अभी और हमारे जो मौजूद मेहमान हैं उनसे भी डॉक्टर साहब की शख्सियत और इस किताब के बारे में जानना चाहूँगी। जनाब जी, मेरा नाम अमजद भट्टी है और डॉक्टर अमजद भट्टी। चलो ये तो लोग ही कहना है। 2-3 हवालों से मैं बात करूँगा। एक तो डॉक्टर साहब से जो मेरा ताल्लुक़ है, 30 साल पुराना ताल्लुक़ है, और फिर किताब की बात करूँगा और फिर दोस्तों के हवाले से। डॉक्टर साहब से जो ताल्लुक़ है वो तो 30 साल पुराना। मैंने इनसे लिखना पढ़ना सीखा है, बल्कि इन्होंने हाथ पकड़ के, मुझे याद है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में कि इन्होंने सिखाया कि रिसर्च क्या होती है, और मुझे पीएचडी करवाने वाले डॉक्टर इनाम साहब भी हैं। ये मेरे बड़े भाई भी हैं। जब मैं गुस्से में होता हूँ तो इनको बड़ा भाई कहता हूँ, जब ये गुस्से में होते हैं तो मुझे बेटा कहते हैं। तो यानी कि हकूक़ बाहमी एहतराम। एक तो ये बात। किताब बुश्का, ये इनकी 76वीं या 77वीं किताब है। मैंने इनसे मुकाबला किया हुआ है कि ज़्यादा कौन लिखता है, लेकिन ये हर वक्त कोई ना कोई किसी न किसी बुनतर में रहते हैं और पता चलता है कि इनकी किताब छप गई है। तो इसलिए डॉक्टर साहब की भी 50 से ज़ायद किताबों के मुसन्नफ़, मोर देन 50, जिसमें तराजम भी बहुत हैं। और लेकिन मैं चूँकि वैसे मेरी 83 है, लेकिन मैं इनसे नीचे रहना चाहता हूँ।
मैं नीचे रहना चाहता हूँ, वो ज़रूरत नहीं है उसकी। नंबर तो आपने बता के ना वारदात डाल दी। नहीं देखिए, हमने तो बुश्का में असल में बुनियादी तौर पे डॉक्टर साहब ना सिर्फ PhD के डॉक्टर हैं, ये MBBS डॉक्टर भी हैं। मैं इनको अदब का डॉक्टर तो हैं ही हैं, ये इनकी हैसियत है। ये उन पंजाबी के PhDs में हैं जो शुरू में इब्तदाई 5, 6, छठा शायद या 5वां नंबर है इनका, और मैं 37वां नंबर था। इस किताब में इन्होंने पूरी सोसाइटी का अहाता किया कि जो इस वक्त मुआशरे में हो रहा है उनको लफ्ज़ों में बयान कर दिया, और ना सिर्फ बयान किया है बल्कि उसका हल भी बताया कि ये सिस्टम बग़ैर किसी रहबर के चल रहा है। देखें अब बुश्के को देखें ना कि इसके बंदे किसी ने पकड़ा नहीं हुआ, यानी कि ये सोसाइटी लीडरलेस सोसाइटी है जिसमें एक राइटर का काम, एक तख्लीक कार का काम ये है कि वो डायरेक्शन दे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो सियासतदानों का काम था वो तो उन्होंने छोड़ दिया, वो तो छोड़ा हुआ है। सही सही। तो अब एक राइटर को रहनुमा के तौर पे भी खुद को आगे आना पड़ा है, और आते हैं, हमेशा से आते रहे हैं, ये नहीं, लेकिन अब उसकी ज़्यादा ज़रूरत हो गई है कि मुआशरे में लोगों के लिए कैथारसिस का रास्ता ही कोई नहीं बचा। बिल्कुल सही सही। और राइटर की खूबी ये होती है कि वो लोगों को कैथारसिस करवाता है, वो खा आंसुओं की सूरत में कराए या वो हंसने की सूरत में कराए। और मैं समझता हूँ कि ये इतना बड़ा सदका जारिया है एक राइटर का कि वो खुद दर्द में रह के, कर्ब में रह के दूसरों को हंसाता है। हालांकि ये एक्सट्रीम शक्ल होती है संजीदा, जो मज़ाहिया शायरी है ये संजीदा शायरी की एक्सट्रीम है। बिल्कुल सही। जब आप कुछ नहीं कह सकते, मतलब वो एक फरियाद है, एक चीख है। हाँ, वो चीख है, तो उसको आप हंस के कह देते हैं। बात असल में वही होती है कि इसके पीछे जो दर्द छुपा हुआ है वो सोसाइटी का दर्द है। और मैं समझता हूँ कि बुश्का, क्योंकि पहले बुश्का का नवा का जो आपने कहा ना कि नवा क्यों ये लगाते हैं, नवा इसलिए लगाते हैं कि ये समझते हैं कि बुश्के की रवायत जैसे ख़त्म हो गई है, तो मैं इसको री इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ कि कौम को आज भी ज़रूरत है कि अपने अपने दुख एक जगह पे जमा करो और बताओ लोगों को, जैसे मैंने बताए हैं आप भी अपने अपने, वरना अंदर ही अंदर मरते जाएंगे। मरना तो सब ने, लेकिन आप दूसरों को बता के मरें कि मैं क्यों मरा हूँ, मेरा दुख ये है कि मैं सोचता हूँ और मैं सोचता हूँ और मैं लोगों के बारे में सोचता हूँ, आवाम के बारे में सोचता हूँ, और उन लोगों के बारे में सोचता हूँ जिनको अपनी कोई फ़िक्र नहीं है। मैं उनको बताता हूँ कि ऐसे जिया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि नवा, इसलिए हम नवा कह रहे हैं इसको कि ये रवायत के साथ साथ चलते हुए उन्होंने, यानी कि क्लासिकल रवायत जो थी, जैसे इन्होंने किस्सा अदब का बताया, वो एक क्लासिकल रवायत, नौ क्लासिकल से होते हुए जदीद तक उन्होंने अपनी उस रवायत को कायम रखा है कि ये क्लासिकल दौर भी इन्होंने देखा, नौ क्लासिकल भी देखा, और जी ये इस दौर में रहे हैं। तो ये समझते हैं कि ये तीनों को, यानी कि माजी, हाल और मुस्तकबल को साथ लेके ही चलेंगे तो बात बनेगी। मैं तो ये समझता हूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत बातें यहाँ पे डॉक्टर साहब की शख्सियत और उनके तख्लीक से मुतालिक हो रही हैं, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पर आज इनके साहबजादे भी मौजूद हैं, और मेरा ख्याल है जितने अच्छे तरीके से वो घर का भेदी लंका ढा सकता है मेरा ख्याल है कि हम ज़रा उनसे कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं। अब मैं क्या बात कर सकता हूँ, मेरा तो लिटरेचर से कोई ताल्लुक नहीं है। लंका ढाए ना? नहीं, बेसिकली मैं तो एक बिजनेसमैन आदमी, मैं एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मुझे तो समझ नहीं आती किताब कैसे लिखते हैं, लेकिन ये है कि मुझे शायरी भी समझ नहीं आती। आप वालिद साहब के बारे में बताइए। ये तो समझ आते हैं, ये तो समझ आते हैं, चीज़ आ जाएगी उसमें से निकल आएगी। बस ये है कि मैंने तो इनको बचपन से ही कुछ ना कुछ लिखते और लिखाते, पढ़ते, पढ़ाते, बल्कि ये लेक्चर्स भी देते रहे हैं, वो भी देखते करते मैंने देखा है उनको। तो एज अ फादर ही इज़ अ वेरी गुड फिगर, एज अ फादर आई एडमायर हिम। मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि फ़ादर तो ये बहुत अच्छे हैं, तो कहीं आपको बचपन में या जवानी में ऐसा तो नहीं लगा कि हम वक्त लिखने में मशगूल हैं, अपने अदब में मशगूल हैं, और आप लोगों को उस तरह मुनासिब वक्त न दे पाए हों? अब तो आदी हो गए, हम क्या पता लगा, मतलब नहीं दे पाए
मैंने मांगा भी नहीं है। मतलब इस कदर दिल टूट चुका है जनाब उनका कि उन्होंने वो मांगा ही नहीं जो उनको ना मिल रहा था, क्योंकि मुझे वालदा से मिल जाता था। जी जी, इसलिए मुझे वो उस चीज़ की। लेकिन यकीनन हम ये समझते हैं कि पूरे घर वालों का ताउन इनके साथ रहा होगा जब भी ये इस मकाम पर पहुंचे, और उन्होंने अपनी कुलियात बेगम साहिबा के नाम की है, जिन्होंने अपना सारा वक्त इनको दे दिया, और वो बात बहुत खूबसूरत मुझे लगी। लेकिन ये ज़रूर एक बात है कि बेशक आप लोगों ने थोड़ा सा सेक्रीफाइस किया होगा, बेशक इनको वक्त दिया होगा, लेकिन आपने इस पूरी कौम को नेशनली भी इंटरनेशनली भी जो एक आला पाए का लिखारी और कदावर शायर दिया, वो यकीनन आप लोगों के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं था। ऐसे ही है जी, ऐसे ही है। असल में मेरी वालदा की जो वालिद साहब थे वो भी शायर थे। खैर मैंने तो उनको इस तरह नहीं काम करते देखा जी, लेकिन उनको आदत थी तो वही कहती थी कि ना ये शायर होता है, इसकी अपनी दुनिया है जी, बिल्कुल, इसको वहीं रहने दो, तखय्युलाती तसव्वुराती, इनको वहीं रहने दो। हम है ना, हम चलते हैं, हम करते हैं ये, लेकिन ये यकीनन इन पे हम सब का हक था ना, ये तो कौम का विरसा है। बिल्कुल। तो इस बारे में कुछ बता जनाब, देखिए बात ये है, अभी जिक्र हुआ कि जी सियासतदान अपना काम नहीं कर रहा ना, बात ये है कि सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे इदारे, बहुत सारे किरदार होते हैं। उसमें उस्ताद भी होता है, उसमें मौलवी भी होता है, सियासतदान भी होता है, दुकानदार भी होता है, इसके साथ शायर भी होता है। और शायर वो बात कहता है जो नॉर्मली सोसाइटी का कोई और आदमी नहीं कहता, और वो मुख्तलिफ आदमी होता है, उसके मूड मुख्तलिफ होते हैं, उसका रहने सहने का अंदाज़ मुख्तलिफ होता है। अच्छा, फिर वो थोड़ा कभी तन्हाई पसंद हो जाता है, कभी मजलिसी हो जाता है। इस सारे अमल में अहले खाना मुतासिर होते हैं, लेकिन शायर या अदीब चूँकि फ़र्ज़ किफ़ाया अदा कर रहा होता है कौम की तरफ से, तो ये उसका ख़ानदान भी फ़र्ज़ किफ़ाया अदा कर रहा होता है उस सोसाइटी के लिए, उस सोसाइटी को खूबसूरत बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए। ये मुमकिन है कि शायर अदीब के बच्चों को या उसकी बीवी को कभी कोई शिकायत होती हो, लेकिन उन्हें ये फ़ख्र भी होता है कि हमारे बाप ने, हमारे किसी बुज़ुर्ग ने इस दुनिया को खूबसूरत बनाने पर अपना किरदार अदा किया है। अभी आपने ज़िक्र किया भाभी का कि, और उन्हें बताया कि उनका कि इन्हें अपने हाल में रहने दो, अपनी दुनिया में रहने दो। तो मेरी जो बीवी है वो तो उसके वालिदैन शायर नहीं थे, उन्हें इसका अंदाज़ा नहीं था, लेकिन थोड़े अरसा पहले, यानी जो हमारी नौजवानी का ज़माना था, हम अदब से कोई शगफ़ रखते थे, इसी तरह उसका भी था। तो उसको अंदाज़ा हुआ कि अच्छा मेरा शौहर अगर ये काम करता है तो इसका मतलब ये है कि इसे कुछ हमें वक्त देना चाहिए। अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ, तो मैं अपना तजर्बा बता रहा हूँ, लिख रहा होता हूँ तो मुझे तंग नहीं करती। तो यही बात अभी डॉक्टर साहब के बारे में समझ में आ रही है कि इनके ख़ानदान ने वो कुर्बानी दी है जो कुर्बानी शायर पूरे मुल्क के लिए, पूरे समाज के लिए दे रहा था। तो लिहाजा ये सवाल ज़रूर कहीं ना कहीं ज़िक्र हो जाता है कि शायर ने क्या किया, वक्त दिया या नहीं दिया। दरअसल उसने वो वक्त जो उसका कीमती वक्त था पूरी कौम को दिया, तो ये उसकी बहुत बड़ी कुर्बानी है। यही बात मैं बिल्कुल यही बात कहना चाह रही हूँ कि यकीनन डॉक्टर साहब ने अपने अदबी सफ़र के साथ साथ अपने ख़ानदान को भी उसमें उसी तरह शामिल रखा है, और इनके साहबजादे एक बेहतरीन तालीम और तरबियत हुए नौजवान की हैसियत से हमारे सामने मौजूद हैं, क्योंकि जो इस कदर बेहतरीन सोच रखने वाले शायर और कदावर लिखारी होते हैं, जिनका माशरे की नब्ज़ पर हाथ होता है, ये कैसे मुमकिन है कि वो अपने घर वालों को नज़रअंदाज कर सकें। तो डॉक्टर साहब हम आपकी तरफ आते हैं और बताइएगा कि आपकी अपने साहबजादे की गुफ्तगू के बारे में क्या राय है, और फिर अपना जो आपका कलाम है कुछ ये ताज़ा हमें सुनाइएगा। कि हसन अकलौता बेटा है, और अकलौता बेटा जो है वो दरअसल बाप होता है जी, बेटा नहीं होता जी। ये ज़रबुल मिसल है, कल्ला पुत भी प्यो ही होता है। तो लिहाजा पानी जाता है वो अलग है, लेकिन वैसे पंजाबी का मुहावरा कि कल्ला, और मेरा एक मिसरा भी उसी पे कि कल्ला पुत्र प्यो ही होता, तो वो लाडला होता है सारा कुछ। तो अपना बिजनेस इसका ठीक चल रहा है, आजकल ये नावल लिख रहा है अपने तौर पर, और मेरा ख्याल 2-2.5 हज़ार का अंग्रेज़ी में, चूँकि ज़्यादा। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि अदीब का बेटा भी अदीब ही बने या अदब से ताल्लुक़ रखे। उसने जो अपनी किताबें पढ़नी थी वो उसने पढ़ ली हैं, और अब भी पढ़ रहा है, और नई नस्ल तो गैजेट पे चली गई ना, ऐसा ही वो भी हो गया। अच्छा, और ये एक नहीं, सैकड़ों घरों की मिसालें हैं। मेरे जो ससुर थे अंजुम रुबानी साहब, जी,
प्रोफेसर थे, मैथ के प्रिंसिपल रहे, और फिर उनकी इकलौती बेटी थी जो मेरी बीवी बनी। तो ज़ाहिर है वो मुझसे पहले बतौर वालिद के एक शायर को भुगत चुकी हुई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर उन्हें शौहर की सूरत में भी शायर को भुगतना पड़ा, तो मुझे बहुत आसानी मैं खुद थी। भी एक शायर की बेटी हूँ, तो मैं आपके दर्द को समझती हूँ, मैं भी एक शायर ही की बेटी हूँ। तो आप भी आसी करनाली से साहब की बेटी हैं, तो आप भी लिखने पढ़ने वालों को तो फिर वक्त नहीं। जी। ये ज़रूर है कि देखिए एक बहुत बड़ा दानिशपर का मैंने पढ़ा था अभी कि जो जिसने भी कोई समाजी काम करना है ना, जी, शायर बनना है, अदीब बनना है, साइंसदान बनना है, साइंसदान का भी ये सियासतदान बनना है, समाजी लीडर बनना है, रफ़ाई काम करना है, तो बनना है, साफ़ी कुछ बनना है, कोई भी मतलब लीडरशिप है, यानी इवन आपने जो है एक अच्छा मौलवी बनना है, वाइज बनना है, तो उसको शादी नहीं करनी चाहिए, ये उसका कॉल है। तो वो वजह ये कि वो वक्त दे नहीं पाएगा ना। अब अभी भी मैं बहुत से उलमाए किराम को जानता हूँ जो सिर्फ जुमेरात के दिन अपने घर आते हैं, बाकी वो एक मुल्तान में जलसा हो रहा है, एक फ़लाँ जलसा हो रहा है, एक फ़लाँ जलसा हो रहा है, वो पे एक अपनी लाइन। बिल्कुल बिलाशुबा घर वालों को बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है। कि जब तक ये मतलब पूरे बिजनेस में नहीं आए थे, तो चूँकि फैमिली मियाँ बीवी और एक बच्चा, तो हम इकट्ठे ही जाते थे हर मुशायरे में। इंग्लैंड भी गए, इकट्ठे ही गए मुशायरों में भी। तो ये फिर अब कहता है कि मुझे मुशायरों से बदहज़मी हो गई। सही है, सही है जी। अब हम रिक्वेस्ट करेंगे डॉक्टर इनाम उल हक जावेद साहब से कि नवा बुश्का से कुछ कलाम हमें जनाब ज़रूर सुनाइए, ताकि लोगों को पता चले कि आपने इसमें एक्चुअली उनसे क्या कहा है। जी दिनेश बतूल साहिबा, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा कर दूँ कि आपने बहुत ही खलूस के साथ ये प्रोग्राम जो है इसको किया। डॉक्टर अमजद भट्टी साहब का, जावेद शहजाद साहब का, फारूक आदिल साहब का, सलीम अख्तर साहब का और इकबाल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके साहबजादे हसन का और हसन का हसन जावेद का बिलखसूस शुक्रिया। वो गेस्ट अपीयरेंस थी उनकी। तो मैं आपको ना पंजाबी में, उर्दू में कथा कहते हैं, पंजाबी में चौसतरा चौमिसरा कहते हैं, तो चौमिसरे कुछ सुना देना पंजाबी से कि जीव नू जंदरे लावा चुप करावा किवें। जीव नू जंदरे लावा चुप करावा किवें, वगदे पानी दे विच कंध बनावा किवें। वगदे पानी दे विच कंध बनावा किवें, ते दिल विच किवें डक्कां राज मुहब्बत वाला। दिल विच किवें डक्कां राज मुहब्बत वाला, भखदा कोला तूड़ी हेठ लुकावा के। भखदा कोला तूड़ी हेठ लुकावा किवें, ते यारी लामदे ने यारी पालदे नहीं। यारी लामदे ने यारी पालदे नहीं, चानन लभदे ने दीवे बालदे। दीवे बालदे नहीं, वाह। चानन लभदे ने दीवे बालदे नहीं, उतों वेखण नूं सूरज जो जापदे ने, विचों फूलो ते जुगनू दे नाल दे ने। उतों वेखण नूं सूरज जो जापदे ने, विचों फूलो ते जुगनू दे नाल दे नहीं। ते फारूक आदिल साहब बिल्कुल अखां साड़ियां गैरां खड़ियां होईयां ने। अखां साड़ियां गैरां खड़ियां होईयां ने, बावां अपणियां ने फड़ियां होईयां। अखां साड़ियां गैरां खड़ियां होईयां ने, बावां अपणियां ने फड़ियां होईयां ने, सिर नीवा ना होवे किवें जुस्से तो। सौण लगियां लेटन लगियां, सिर नीवा ना होवे किवें जुस्से तो। सिर नीवा ना होवे किवें जुस्से तो, सेरू दी थां बाहियां जड़ियां होईयां। सेरू दी थां बाहियां जड़ियां होईयां। क्या बात है, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। नहीं आप चलते रहिए। आप की दस्सां मैं किथे आके गल कवली होई है, की दस्सां मैं किथे आके गल कवली होई है, हर पासे खुद गर्जी दी एक लहर चली। की दस्सां मैं किथे आके गल कवली होई है, हर पासे खुद गर्जी दी एक लहर चली होई है। निक्की जही एक चार दीवारी है, निक्की जही एक चार दीवारी है, पर एदे अंदर भी चारे सूबे। निक्की जही एक चार दीवारी है, पर एदे अंदर भी हर बंदे ने वखो वखरी नुकर मली हुई। निक्की जही एक चार दीवारी है, पर एदे अंदर भी हर बंदे ने वखो वखी नुकर मली हुई है। ते सीना साडा तुखदा रहिंदा है,
ਗਿੱਲੀ ਲੱਕੜੀ ਵਾਂਗੂ। ਫਾਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਗਿੱਲੀ ਲੱਕੜੀ ਵਾਂਗੂ ਤੇ ਫਿਕਰ ਸਾਡੀ ਜਾਲੇ ਬੁਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਮਕੜੀ ਵਾਂਗੂ। ਸੀਨਾ ਸਾਡਾ ਤੁਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਗਿੱਲੀ ਲੱਕੜੀ ਵਾਂਗੂ ਤੇ ਫਿਕਰ ਸਾਡੀ ਜਾਲੇ ਬੁਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਮਕੜੀ ਵਾਂਗੂ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਖਬਰੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਛੇਕੜ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ। ਫੇਰ ਵੀ ਖਬਰੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਛੇਕੜ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਪਲੜੇ ਰਹਿਣ ਬਰਾਬਰ ਖਾਲੀ ਤਕੜੀ ਵਾਂਗੂ। ਫੇਰ ਵੀ ਖਬਰੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੀਨਾ ਸਾਡਾ ਤੁਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗਿੱਲੀ ਲੱਕੜੀ ਵਾਂਗੂ। ਸੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਲ ਪਵੇ ਨਾ। ਸੀਨਾ ਸਾਡਾ ਤੁਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਗਿੱਲੀ ਲੱਕੜੀ ਵਾਂਗੂ ਤੇ ਫਿਕਰ ਸਾਡੀ ਬੁਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜਾਲੇ ਮਕੜੀ ਵਾਂਗੂ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋੜ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏ ਫਿਕਰ ਸਾਡੇ ਜਾਲੇ ਬੁਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਮਕੜੀ ਵਾਂਗੂ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਖਬਰੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਛੇਕੜ ਉੱਤੇ ਆ ਦੋਵੇਂ ਪਲੜੇ ਰਹਿਣ ਬਰਾਬਰ ਖਾਲੀ ਤਕੜੀ। ਦੋਵੇਂ ਪਲੜੇ ਰਹਿਣ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਹੱਥੀਂ ਚਾੜੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਨਾਲ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਖੋਲਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਹੱਥੀਂ ਚਾੜੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਇਹੀ ਖੋਲ ਰਹੇ ਜੀ। ਹੱਥੀਂ ਚਾੜੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਾਲ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਖੋਲਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰੇ ਸ਼ੱਕ ਜੇ ਗਾਹਕ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਸੌਦਾ ਤਕੜੀ ਚ ਤੋਲਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਕਰੇ ਸ਼ੱਕ ਜੇ ਗਾਹਕ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਸੌਦਾ ਤਕੜੀ ਚ ਤੋਲਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੇ ਭੇਦ ਪੋਸ਼ੀਦਾ ਨੇ ਚੁੱਪ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਭੇਦ ਪੋਸ਼ੀਦਾ ਨੇ ਚੁੱਪ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਭੇਦ ਪੋਸ਼ੀਦਾ ਨੇ ਚੁੱਪ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਬੁਲ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਫਾਇਦੇ ਬੜੇ ਭੇਦ ਪੋਸ਼ੀਦਾ ਨੇ ਚੁੱਪ ਅੰਦਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਬੜੇ ਭੇਦ ਪੋਸ਼ੀਦਾ ਨੇ ਚੁੱਪ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਬੁਲ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੰਗ ਦਾ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਆਪਣੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਆਪਣੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਉਹ ਵੀ ਰਹਿ ਗਈ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਆਪਣੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਵੀ ਰਹਿ ਗਈ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰੇ ਮੁੱਲ ਕੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰੇ ਮੁੱਲ ਕੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜੈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ। ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰੇ ਮੁੱਲ ਕੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜੈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ। ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰੇ ਮੁੱਲ ਕੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜੈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ। ਮੁੱਲਾ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰੇ ਮੁੱਲ ਕੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜੈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਤੇ ਮੁੱਲਾ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਏ ਮੁਫਤੀ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਵੇਖੋ ਪਈ ਮੈਂ ਉਸ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਵੇਖੋ ਪਈ ਮੈਂ ਉਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ਾ ਵਾਹ। ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਵੇਖੋ ਪਈ ਮੈਂ ਉਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ਾ ਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਢਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫੀਲੇ ਕੋਲੋਂ ਫਰਜ਼ੀ ਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਢਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫੀਲੇ ਕੋਲੋਂ ਫਰਜ਼ੀ ਦਾ। ਫਰਜ਼ੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੇ ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਫੀਲਾ। ਫੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਢਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫੀਲੇ ਕੋਲੋਂ ਫਰਜ਼ੀ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਇਰਸ਼ਾਦ ਇਰਸ਼ਾਦ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਫਿਤਰਤ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਫਾਰੂਕ ਆਦਿਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਇਨਸਾਨੀ ਫਿਤਰਤ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਅਜਬ ਤਮਾਸ਼ਾ ਡਿੱਠਾ। ਵਾਹ ਇਨਸਾਨੀ ਫਿਤਰਤ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਅਜਬ ਤਮਾਸ਼ਾ ਡਿੱਠਾ ਜਿਹੜੇ ਖੂਹ ਤੱਕ ਡੋਲ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿੱਠਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਇਨਸਾਨੀ ਫਿਤਰਤ ਦਾ ਇਨਸਾਨੀ ਫਿਤਰਤ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਅਜਬ ਤਮਾਸ਼ਾ ਡਿੱਠਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੂਹ ਤੱਕ ਡੋਲ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿੱਠਾ। ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਖਾਮੀ ਦੇਖੀ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਖਾਮੀ ਵੇਖੀ। ਆਪਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਕਾਦਾਵਰ
ये गैर हुए थे गिठा, वाह हुए थे कादा पर, ये गैर हुए थे गिठा। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत क्लैपिंग हो जी सर के लिए, क्लैपिंग बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ये व्यूअर्स आपने देखा कि डॉक्टर इनामुल हक जावेद साहब ने अपनी जो ताज़ा तसनीफ़ है इनकी नवा बुश्का, उसमें से हमें इन्होंने अभी अपना कलाम सुनाया और इस कदर खूबसूरत कलाम है, इस कदर खूबसूरत कलाम है कि अब हम सब मजबूर हो गए हैं कि इस किताब का मुताला ज़रूर किया जाएगा। तो मैं इसके बारे में तज्ज़िया भी आपके सामने पेश करूंगी अपने अगले प्रोग्राम में। और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ डॉक्टर साहब आपकी कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपकी शख्सियत के साथ साथ आपकी इस नई तख्लीक के बारे में बेहतर तरीके से जान सके। इंतहाई खूबसूरत कलाम, और आप सब साहिबान की भी मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने डॉक्टर साहब के लिए यहाँ पर वक्त निकाला और हमारे इस प्रोग्राम को नहायत जानदार बनाया। थैंक यू सो वेरी मच। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे थे आप? बस मैं भी आपका और सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। सर आप हमारा विरसा हैं, हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे, आप हमारा बिल्कुल नहीं करेंगे। और जी ये हमारा विरसा है और हम इनके शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हमें अपनी शख्सियत और अपनी किताब को जानने का बेहतरीन मौका दिया। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह निगहबान। माशाल्लाह।